aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll discuss the Hindu analysis dated 30th August 2021. So let's start today's discussion. The first article, Oil Palm Plan is a recipe for disaster. Activists raise concern over the proposal. Now, related to this article, an article came last week stating about an scheme, or we can say a plan, which was known as National Mission on Edible Palm. National Mission for Edible Oil Palm. This mission we have studied last time. It is a 11 crore mission, and it states, or it plans to build or increase the production of palm oil in the regions of northeast India and in Andaman and Nicobar. Now it is raising a concern. Why is it raising a concern? Because the environment specialist or the ecological department are stating that production of palm oil can be a disaster or is a danger for India's ecology, because according to the plan, it is stated that wherever the palm oil will be produced or the production of palm oil will be done, it will harm the tribal community first of all. Second, the ecological places, or we can say the places where it has been decided, so the endangered species will also affect. If you will read the article states that only, given the widespread destruction of rainforest and native biodiversity caused by the oil palm plantation, the environmental experts and the politicians are warning that union governments' move to promote their cultivation in the northeastern states and Andaman can be disastrous for the ecological part. Okay. So the other concern includes the impact of community over ownership of tribal land. Why tribal land? As we have stated, or we learned in the last article about the palm oil, कि the सबसे बड़ा question is where you will do this production. So according to the plan, it was decided that the tribal land will be used for it. So it will affect the tribal's land if you are using that we can say part for oil production, oil palm production. Second thing, oil palm oil palm is such a, we can say, material or such a commodity which requires a monoculture crop, a single culture crop. You can't grow any other thing, as it takes a very long time. Planting or cultivation of oil palm takes a very long time for having a suitable period. So that is also not suitable for the farmers. Why? Because farmers here not only produce monoculture or not only produce one crop, but they try to produce 2 to 3 crops in a year. So it is we can say a negative part for the farmers also. Okay, so tribal land becomes the first concern. Second concern is for the farmers, as it is a long time taking procedure. Now the second thing that speaks here is about the letter to PM. So letter to PM is basically when it is related to this project of national edible oil palm, which is of 11 crore. So हमारे जो मेघालय के एक MP थे, उनका नाम था मिस्टर अगता संगमा. उन्होंने लेटर दिया था उनको स्टेटिंग दैट कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये बना रहे हो, सो हमारे यहाँ का जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स है और इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज़ है, वो जो है ऑयल पाम प्लांटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या फिर द हैबिटेंट्स ऑफ द स्पीशीज़. क्यों पता है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रोसीजर, एंड अगर हॉटस्पॉट एरिया आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली हॉटस्पॉट एरिया में जो हमारे जितने भी हैबिटेंट्स हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं, वो लोग को वो जगह उनका खाली हो जाएगा. तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोलॉजी एज वेल. इट कुड ऑल्सो डिटैच द ट्राइब पीपल फ्रॉम द आइडेंटिटी लिंक्ड कम्युनिटी. वाई? बिकॉज यू आर टेकिंग दैट लैंड फॉर प्रोडक्शन. So Congress leaders and the former environment minister Mr. Jai Ram Ramesh said the proposal for the long scale oil palm cultivation is rejected as a part of technology mission. ठीक है, क्योंकि एक बार 1980s में ये सेम प्रोजेक्ट को इनिशिएशन की बात की गई थी और 1980s में ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था, स्टेटिंग इट एज द रेसिपी फॉर द इकोलॉजिकल डिजास्टर.
सो सेम चीज़ अभी भी बोली जा रही है। क्यों बोली जा रही है? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार, जो हमारा पाम ऑयल है वो एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है, वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है उस जगह का, ठीक है। बीइंग एन इन्वेसिव स्पीशीज़, वहाँ का जो एरिया है वो शायद सूटेबल नहीं करेगा, और वहाँ के एरिया के लिए वो वी कैन से इट इज़ हार्मफुल. So here it's stated that only the palm is an invasive species. It is not a natural forest product for the northern eastern states of India, and it will impact the biodiversity as well as the soil conditions. Obviously अगर वहाँ का वो species नहीं है, वहाँ का natural habitat नहीं है, तो it will affect the soil condition also. Any kind of monoculture plantation is not desirable. The biologist is said, who is the head of Guwahati based conservation organization. सो ये कंक्लूड कर सकते हैं हम कि पाम ऑयल प्रोडक्शन जो है वो जिस जगह को लिया गया है, बेसिकली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हमारे अंडमान निकोबार को, उस जगह के लिए वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि इट इज़ एन इन्वेसिव प्लांट फॉर दैट एरिया. इट विल अफेक्ट द इकोलॉजी, इट विल अफेक्ट द हैबिटेट, इट विल अफेक्ट द सॉइल कंडीशंस ऑफ दैट एरिया ऑल्सो. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक उसका वी कैन से ड्रॉबैक है इस प्रोजेक्ट का, जो नेशनल मिशन जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया था. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अफगान threaten and judging India's responses. Afghan threaten and judging India's responses. बेसिकली अगर इस पार्ट की बात करें, सो वी नो अफ़गानिस्तान का सिचुएशन अभी क्या हो चुका है, ठीक है. अफ़गानिस्तान में किसका कितना रोल प्ले हो रहा है, अगर फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो किस कंट्रीज़ ने तालिबान के साथ मतलब कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की, किस कंट्री ने नहीं की, उस पर्सपेक्टिव से इंडिया का क्या उसमें रोल रहेगा, ये सब रिलेटेड ये आर्टिकल आया है. सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द इंट्रोडक्टिव पार्ट, सो इट स्टेट्स, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि सारे जो काबुल की इंडियन एम्बेसी है उसको बंद करना है, और जो मतलब जितने लोग थे उनको खाली कर दिया उस एरिया से. सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंडिया ने ये स्टेप लिया है तो इज़ इट अ राइट स्टेप और इज़ इट अ रॉन्ग स्टेप, ठीक है. सो the government's decisions to pull out the staffs from the embassy in Kabul, Afghanistan, including the ambassadors, has come to such a adverse comment into the analysis and the experts. क्यों? क्योंकि जितने भी मेजर पावर्स हैं, जैसे कि चाइना हुआ, देन रशिया, इवन ईरान, ठीक है, इवन ईरान, ये लोग ने भी आफ्टर पुलिंग बैक द एम्बेसडर्स, उन्होंने तालिबान के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की. At least it is said we ought to have had a consular office at the airport, such as one said to be kept. सबसे पहले हम देखेंगे वेयर इंडिया स्टैंड, इंडिया का क्या पोजीशन है इफ़ इट कम्स टू तालिबान सिचुएशन और इफ़ इट कम्स टू अफ़गानिस्तान रीसेंट सिचुएशन. सो राइटर का ये मानना है कि देर इज़ नो मीन ऑफ वेरिफिकेशन कि तालिबान के साथ तालिबान को अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रह गया था इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि शुड बी अप्रोच तालिबान एज अ गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान और नॉट, ठीक है. तो इंडिया ने अपना वी कैन से उतना फोर्स या उतना अपने साइड से इनिशिएशन नहीं लिया था, ठीक है. इंडिया इसके लिए ऐसा बोला जाता है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान और तालिबान, इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग अ मेजर रोल इन इट, और इंडिया इज़ नॉट द मेजर पावर व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान. क्योंकि वहीं पे जगह पे अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया, चाइना हो गया, देन रशिया हो गया, इवन ईरान बीइंग अ इस्लामिक कंट्री, इन लोग ने कोशिश की अपना मतलब तालिबान के साथ अपना पावर प्ले करने के लिए. तो वी हैव नॉट फॉलोड इन इंडिपेंडेंट और नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी टुवर्ड द इवेंट्स ऑफ कंट्री, क्योंकि हम लोग जो थे वो हम लोग तालिबान के हिसाब से नहीं चलते थे, हम लोग अफ़गान गवर्नमेंट के हिसाब से चलते थे, या फिर हम बोल सकते हम लोग जो अशरफ घनी थे उनके हिसाब से चलते थे, उनके रिलेशंस के हिसाब से चलते थे. सो वी ऑल डिड वॉज टू सपोर्ट वॉट एवर गवर्नमेंट वॉज टू बी डन इन काबुल बाय दी वी कैन से फर्स्ट बाय यूएस एंड देन मिस्टर अशरफ घनी. उनके बोलने के हिसाब से हम अपना काम कर रहे थे. तो हमारे मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया कि वी वर पुटिंग ऑल द एग्स इन दी घनीज बास्केट विच इज़ प्रूविंग रॉन्ग करेंटली,
ठीक है, इट इज़ प्रूविंग रॉन्ग करेंटली, क्योंकि ये बोला जाता है दो कि अफ़गान अशरफ घनी वो अकेडमिकली बहुत अच्छे थे या डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनका अथॉरिटी बहुत अच्छा चला, बट व्हेन इट केम टू अफगानिस्तान इट प्रूव्ड रॉन्ग. ठीक है, ही वाज स्टेटेड और ही वाज अनाउंस्ड एज द मोस्ट करप्ट पर्सन. ठीक है, देन ही वॉज स्टेटेड कि ही वॉज नॉट एबल टू रूल और कंट्रोल दैट एरिया ऑफ अफगानिस्तान. ऑल्सो ही वॉज नॉट अ फ्री एजेंट हैविंग टू डू अमेरिकाज बिडिंग all the time. We poured almost 3 million worth project across the country. When it come to Afghanistan government, तो we had a proper प्रोजेक्ट्स विद देम, और जितने भी प्रोजेक्ट्स या स्टेक होल्डिंग हमने की, इट वाज ऑल डन विद अशरफ घनी's पर्सपेक्टिव कि उनको क्या चाहिए या उनके लिए क्या सही होगा. ठीक है, हमने कभी भी तालिबान के पर्सपेक्टिव से नहीं किया. ठीक है, तो इसकी वजह से अशरफ घनी को हम गलत साबित कर सकते हैं या इंडिया का रोल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल के लिए. नेक्स्ट पार्ट इज़ द फिलर्स टू तालिबान. फिलर्स टू तालिबान की अगर मैं बात करूँ तो इट सिंपली स्टेट्स, इन अदर वर्ड, इंडिया हैज़ नॉट बीन अ रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट प्लेयर टू प्ले अ रिलेशन इन अफगानिस्तान. ठीक है, गवर्नमेंट जो है क्रिटिसिज्म इसको कर रही है कि आपने एक भी बार तालिबान के साथ इनिशिएशन नहीं लिया कि एटलीस्ट हैव अ डायलॉग विद देम कि वो लोग चाहते क्या है. The government has not denied this claim. However, it did begin the talk with Taliban. It was too late or too little. ठीक है, जब इंडिया ने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए था, it was too late for them to do it. We should have been open about it and establish a proper contact with the senior level of Taliban, just like China, Russia and Iran who have done this. ईरान की बात करूँ, दो बीइंग अ शिया कम्युनिटी, मेजॉरिटी जो है शिया कंट्री है वो, तभी भी ओपनली दे वर एबल, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ देखा जाता है कि जो शिया कम्युनिटी है और सुन्नी, क्योंकि तालिबान इज़ अ सुन्नी कम्युनिटी, प्रॉपर सुन्नी टेरर ग्रुप है, और ईरान की बात करूँ तो ईरान जो है वो प्रॉपर शिया कम्युनिटी है. तो दो बीइंग एन प्रॉपर डिफरेंट कम्युनिटी, देन ऑल्सो ईरान वॉज एबल टू गो एंड टॉक विथ तालिबान की जो भी है रिलेशन आगे के बारे में. Even if America started talking openly without feeling at least embarrassed to Taliban at the senior level. ये सब मतलब ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में यूएस ने भी अपना फुल ट्राई किया टू टॉक विद द तालिबान सीनियर्स कि कैसे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. बट इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने एक बार भी ओपन ट्राई नहीं किया ये चीज़ करने को, बिकॉज वी थॉट कि अशरफ घनी वुड बी, जो हमारे उस टाइम पे उधर थे, वुड बी अपसेट विद अस या वुड बी नॉट फीलिंग राइट अबाउट इट. वी कुड नॉट टॉक टू तालिबान बिकॉज दे रिफ्यूज टू टॉक द गवर्नमेंट. ठीक है, बाद में जब ऐसा चीज़ हुआ कि इंडिया ने कोशिश की, तब तालिबान ने मना कर दिया कि नहीं करना. ठीक है, द एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर जो वहाँ पे थे, मिस्टर विवेक कदछू, हैज़ आर्ग्यूड एंगेजिंग डज नॉट इम्प्लाई एंडोर्सिंग. दिस वे इट इज़ अ सीरियस स्लैप. वी नीड टू टॉक टू द पीपल whom we have distasteful to talk, whether it's China, it's Pakistan or Taliban. Even if we had a skeleton staff for this consular work, we need a proper help to approach them. ऐसे डायरेक्टली we can't go and approach them. ठीक है, देन उसके बाद है द अदर ग्रुप. अदर ग्रुप अगर बात करें तो ये हमें यही बताता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट तालिबान. तालिबान को छोड़ के उधर और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिसका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है या इंडिया ने कभी रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं की. जस्ट लाइक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, फिर हमारा जो वहाँ पे इस्लामिक स्टेट इन खुसरन है, जिसको हम ISK भी बोलते हैं, ISI भी बोलते हैं. सो ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो अभी भी वहाँ पर हैं और हमारे लिए एक थ्रेट प्रो करते हैं वो लोग. ठीक है, तो इंडिया ने तालिबान को भी, तालिबान हुआ या फिर ये लश्कर तैयबा हुआ, जैश मोहम्मद हुआ, किसी के साथ कभी प्रॉपर रिलेशन या फिर एक ओपन डायलॉग करने की कोशिश भी नहीं की, जिसकी वजह से आज ये पोजीशन है कि बाकी कंट्रीज तालिबान के साथ अभी भी प्रॉपर टॉक कर पा रहे हैं फ्रीली. US जैसी कंट्री भी कर पा रही, बट इंडिया स्टैंड्स नोवेयर देयर. The last one is foreign policy approach. Foreign policy approach में one can criticize the government for some approaches it had followed in the foreign policy, like जो aligning so closely with America, which has in return caused Russia to be unhappy or led them to be more close to the enemy, that is China. ठीक है, giving such a huge importance to the Quad.
ठीक है, composed of US, Australia, India and Japan is also questionable decision. Quad is an American maneuver to contain China. It is embarrassing. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम काबुल को लेके बात करें या अफ़गानिस्तान को लेके बात करें तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, आगे जाके इंडिया शायद क्या ही करेगा. सो अफ़गान इज़ एक्चुअली बीइंग अ थ्रेट टू अस, क्योंकि हमने कभी रिलेशंस बनाए नहीं. अब जब रिलेशंस बनाने की बात आ रही तो वी आर स्टैंडिंग नो वेयर एज सम अदर ग्रुप्स हु आर बैकिंग अप दी तालिबान. सो ये एक क्वेश्चन ही रह जाता है कि इंडिया आगे इसके लिए क्या करेगा. सो विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट्स इंडिया रशिया टू एक्सपांड सेंट्रल एशिया टाइज एनवॉय. इसका बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो कुछ टाइम पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था अबाउट S-400. ठीक है, कि रशिया से S-400 का जो है सप्लाई आने वाला है इंडिया को. ठीक है, तो उसके रिलेटेड ही बात की गई है कि हमारा जो है रशिया के साथ टाइज बहुत अच्छा चल रहा है और होने वाला है. इसमें और एक ग्रुप के बारे में बात किया जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रेसलोस. रेसोस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट. ठीक है, सो ये नेवी टू नेवी कॉपरेशन हुआ है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कुछ टाइम पहले ही रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल सेर्गी सीजॉय वो आए थे इंडिया. ठीक है, और दोनों साइड से इंडिया और इंडिया और रशिया दोनों साइड से ये प्रॉपर डायलॉग्स हुआ है और पॉसिबल हुआ है कि आगे जाके और सप्लीमेंट्स या फिर और एक्सेसिव बायलैटरल एक्सरसाइजेस हो सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया. वन ऑफ द डील जो है वो हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हम कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि विच इज़ कमिंग टू इंडिया, जिसका प्रॉपर डेवलपमेंट या प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है दोनों के जॉइंट वेंचर्स में. बोथ द कंट्रीज आर ऑल्सो शेड्यूल्ड टू होल्ड अ मेडन ऑफ 2+2 डायलॉग. 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग्स होने वाले हैं. ऑन द समिट मीटिंग ही सेड दैट डेट्स वर येट टू बी फिक्स्ड बट आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द एंड ऑफ द ईयर. सो ये 2+2 डायलॉग के रिलेटेड बोला जा रहा है कि डेट इज स्टिल नॉट फिक्स बट हाँ बहुत जल्दी होने वाला है. एक चीज़ बताई गई अबाउट द अफगानिस्तान क्राइसिस. द फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान हैव टेकन कोर्स everyone by surprise, unexpected as their speeds as well as their consequences. It's basically talking कि अफगानिस्तान में जो चेंज आया है, ऑल ऑफ सडन जो गवर्नमेंट चेंज हुआ, ऑल ऑफ सडन जो अथॉरिटी चेंज हुआ, तो इसका क्या रेपरकशंस होने वाला है. While a number of countries in the regions and beyond has affected Afghan development in the axis, a sense of affecting more than due to the Islamic fundamentalist and the radical group. This could potentially end up the very foundation of interstate relations in the broader region. So, Mr. Verma, who will be retiring in 2 months, described the transformation of India relations with last 2 years quite revolution. सो ये चीज़ देखा जा रहा है कि इंडिया का जो रिलेशन है इट्स बीन गोइंग वेरी गुड और हम लोग आगे जाके और भी डील साइन करने वाले हैं, जैसे कि S-4 वाला रिसेंटली हुआ एंड 2+2 डायलॉग में और भी चीज़ें डिस्कस होंगी. अभी आर्टिकल में हमारे लिए जो जानना थोड़ा ज़रूरी था दैट इज़ रेसलॉस, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो रेसलॉस की अगर सिंपल हम बात करें तो ये एक एग्रीमेंट है जो इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुई है, which comes with military facility. ठीक है, जैसे कि सप्लाई ऑफ फ्यूल्स हो गए, एक्सपांडिंग दी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हो गए, ऑपरेशनल टर्न अराउंड्स हो गए. इंडियन मिलिट्री को लेके जितनी भी तरह के अगर कुछ सामान चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो वो हम एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ कर सकते हैं. सो ये हमारा एग्रीमेंट ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब उसका यही है कि इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशियाज एक्सेस टू दी मिलिट्री फैसिलिटीज़. व्हाट आर द मिलिट्री फैसिलिटीज़ इसमें? तो इसमें फ्यूल आ सकता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, देन लॉजिस्टिक सपोर्ट आ सकता है, देन जो भी इंडियन मिलिट्री सामान होंगे वो सब इसमें आ सकते हैं. Now, what are the benefits or the mutual significance which will happen to both the country? सबसे पहले इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडियन नेवी. वाई? बिकॉज जो रशिया का हम बोल सकते हैं लार्ज ओरिजिन जो शिप है
या जो हम बोल सकते हैं कि रशिया का मेन सप्लाईज हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू जॉइंट एक्सरसाइजेस. So this will be beneficial for Indian Navy, which has a large number of Russian origin ships, and that will have an access to the supplies and refueling it. So it will be good for the joint exercise that happens between India and Russia. उसके बाद नेक्स्ट देखें तो जो एयरफोर्स विल बी टू बेनिफिट बाय हैविंग इट अ ईजियर डिप्लॉय एयरक्राफ्ट विद द सेम पर्पस. Then this access will also be for the ports in Russian part of Arctic, allowing the access of energy resources. On the other hand, अगर रशिया की बात करें तो इंडियन पोर्ट और इंडियन एयर बेसिस का फ़ायदा उनको होगा, बिकॉज इफ़ दे वांट टू डिप्लॉय एनी ऑफ द शिप्स या एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, तो वो इंडियन पोर्ट और इंडियन बेस का यूज़ कर सकते हैं. सो एक्सेस टू द एनर्जी जो है ये दोनों को बेनिफिशियल हो सकता है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जानना था कि एग्रीमेंट ऑफ रेसिप्रोकल होता क्या है, व्हाट डज इट मीन्स. सो ये आर्टिकल में यही था. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. इट स्टेट्स दैट इंडिया इंक्लाइन नॉट सैंग्यू अबाउट द ग्रोथ. सो अब इस आर्टिकल में एक चीज़ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है, विच इज़ नोन एज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है, जो रिलीज़ हमें बता रहा है कि इंडिया का जो सिचुएशन अभी है वो आगे जाके और भी अच्छा हो सकता है. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या प्ले हो रहा है इसमें. सो इंडियन इंडस्ट्री डज नॉट सीम्स टू शेयर एन ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अबाउट दिस ईयर्स ग्रोथ. नियरली 2/3 of the CEOs of large corporate polled by the CII, that is the Confederation of Indian Industries, at its National Council meeting earlier this month, experts expects that India's GDP will go to be increased by 9% or less. Almost इतना growth होने वाला है. The central bank has also recently downgraded its GDP growth projections for the year of 9.5 or 10.5 earlier, according to the chief economic advisor Krishnamurthy Subramaniam. So कुछ डेटा दिया गया है. दूसरा डेटा, just by 12%, the CEO expect the growth of over 10% of the total's GDP. As many as 44% expect the growth between 8 to 9%, while 23% growth hit by 9 to 10% रेंज. सो ये पॉलिसी मेकर्स का एक एस्टिमेशन आया है कि इतना हमारा ग्रोथ होने वाला है. दो बीइंग इन द पैंडमिक सिचुएशन, इंडिया विल हैव the growth because of the current working of the CEOs or because of the corporate वर्किंग फंक्शनिंग्स. ठीक है, अब इस आर्टिकल से हम पढ़ेंगे थोड़ा अबाउट द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, क्या काम है इसका एंड ऑल दैट थिंग. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ CII का, ये CII जो है एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट non-governmental organization or agency which is created by the advisory or the consultation for the growth of industries and civil societies in India, for the growth of industries and civil societies in India. इसका जो फाउंडिंग है, इसका जो फाउंडेशन है या जो हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ प्रॉपर, तो 1895 से था, ये बना गया था, जिसमें एट दैट टाइम देयर वर टोटल 8000 मेंबर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स थे, जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों में से थे. ठीक है, सो इट फोकसेस ऑन दी पॉलिसी इश्यूज विद द गवर्नमेंट. ठीक है, प्रॉपर टूल्स बताता है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स, कि ऐसे क्या टूल्स या ऐसे क्या हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं ताकि हमारा फाइनेंशियल रिफॉर्म जो है फाइनेंशियल ईयर अच्छे से चले. थोड़ी सी हिस्ट्री बात करते हैं अबाउट द CII. सो इन 1895 ऐसे 5 इंजीनियरिंग कंपनीज जो थे वो साथ में आए थे, मतलब जैसे कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देन इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन, ऐसे 5 अलग अलग कंपनीज थे जो कि साथ में आए थे फॉर इट्स फंक्शनिंग. ठीक है, देन 1912 में हमारा जो ये इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन है, दैट वाज रीनेम टू
different that was renamed basically to represent the purpose of the organization. ठीक है, इसमें अभी फिर ट्रेड और रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं था, बट टू बेसिकली रिप्रेजेंट द इंडियन इंडस्ट्री उसका नाम चेंज कर दिया गया था 1912 में. एंड देन 1942 में हमारे जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसका नाम चेंज किया गया था, वॉज फॉर्म्ड एज एन एफिलिएट ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स टू सपोर्ट द इंडियन ओन्ड कंपनीज. ठीक है, सो नाम इसकी वजह से चेंज किया था ताकि इट वुड सपोर्ट द प्रॉपर कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. देन इन 1986 में हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन था, दैट वाज डेजिग्नेटेड एज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. अगेन देन नाम चेंज किया, एंड देन लास्ट दैट वाज इन 1991 में फिर उसको प्रॉपर नाम दिया गया जो कि आज है, दैट इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़. ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स की जैसे मैंने बात की, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो टू रिकॉग्नाइज द एनकरेजिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, टू एनहांस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बिजनेस इन द सोसाइटीज, देन टू हैव अ प्रॉपर डेटाज, डिटेल डेटा ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज. ये कुछ उसके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक डेटा रिलीज़ किया है शोइंग दैट कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट या जो इंडिया का GDP है, दैट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशंस और द कॉर्पोरेट बोर्ड. ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. The next news states China to require a foreign vessel to report in टेरिटोरियल वाटर्स. ठीक है, तो ये न्यूज़ अगर बात करें हम, ये न्यूज़ हमारे लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता है. क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता है, तो एक हमारा साउथ चाइना सी. ठीक है, दूसरा इंडियाज़ रोल इन इट. चौथा चाइना के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है साउथ चाइना सी, वो भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है. दूसरा यहाँ पे एक चीज़ बताया अबाउट द 9 डैश लाइन. ठीक है, सो 9 डैश लाइन हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. पहले हम थोड़ा आर्टिकल पढ़ लेंगे कि आर्टिकल क्या बता रहा है, एंड देन विल डिस्कस ऑल द थिंग्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन अ मूव दैट could have the ramification of the free passage of both military and commercial vessels in South China Sea, Chinese authorities said on Sunday that they will require a range of vessels to report in their information. बेसिकली क्योंकि चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी जो है वो इनके टेरिटोरियल सी में आता है, सो इसमें अगर आपको कुछ भी पास करना है तो यू हैव टू गिव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ से पास हो रहे हो. वेरएस हमने साउथ चाइना सी के बारे में देखा था कि वो चाइना के एक्चुअल टेरिटोरियल इसमें नहीं आता है, और हमारा जो ये लॉ है मिलिट्री वाटर लॉ का, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था. Over 5 trillion trade passes through the South China Sea and 55% of India's trade जो है 55% of India's trade happens through the South China Sea, Malacca Strait. So Indian Ministry of External Affairs, China claims under the so-called 9 dash line on its map most of the South China Sea's water is under their part. ठीक है, including Philippines, Vietnam, Malaysia and Indonesia. 9 डैश लाइन हम देखेंगे क्या है. ठीक है, सो ये आर्टिकल में 9 डैश लाइन के लिए अलग से भी एक पार्ट बताया है. द 9 डैश लाइन इज डीम्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एट द इनकंसिस्टेंस विद द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी. कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी इसने रिजेक्ट कर दिया था कि चाइना के अंदर नहीं आता है. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ सी, आपके ज़मीन से जो 12 नॉटिकल माइल्स का तक का ज़मीन है या पानी है, सॉरी, आपके ज़मीन से लेके जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का ज़मीन है वो आपके अंदर आएगा. ठीक है, उसी के लिए चाइना ये क्लेम करता है कि 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर हमारा साउथ चाइना सी आ रहा है. ठीक है, सो in 2017, in the response of the question, India's trade in the South China Sea, that over 5 trillion global trade and 55% of India's trespass from the Malacca Sea and the South China Sea. So इंडिया की अगर हम ट्रेड की बात करें, इंडिया का जो है ऑलमोस्ट 55% ऑफ जो ट्रेड है वो इस तरफ से होता है, दैट इज़ थ्रू दी मलक्का सी एंड साउथ चाइना सी. ना अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको ये डैश दिख रहे हैं, लाइंस दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी को हम
9 डैश लाइन बोलते हैं। सो चाइना का ये है कि ये 9 डैश लाइन के अंदर का जो एरिया है साउथ चाइना सी का, वो हमारा पार्ट बनता है, वो चाइना का पार्ट बनता है। सेम चीज़ फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया, वियतनाम, इनका भी सेम चीज़ मानना है कि ये जो है ये हमारा पार्ट बनता है। सो वो चीज़ जानने के लिए पहले थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं, या साउथ चाइना सी का थोड़ा फीचर देख लेते हैं कि साउथ चाइना सी कैसा क्या है, कौन सी जगह पे आता है। ओके, सो साउथ चाइना सी की अगर मैं बात करूं, साउथ चाइना सी के गवर्निंग के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम हमने अभी देखा, ठीक है। साउथ चाइना सी इज़ अ वेस्टर्न आर्म ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न आर्म आ रहा है इन दी साउथ एशियन, ईस्ट एशियन एरियाज, ठीक है। सो ये इसके अंदर कौन सा पार्ट आता था, साउथ ऑफ चाइना आता है, ठीक है। देन साउथ ऑफ वियतनाम आता है उसके पार्ट में, वेस्ट ऑफ फिलीपींस आता है, नॉर्थ आइलैंड ऑफ ब्रुनॉय, ठीक है, एंड मलेशिया इसका पार्ट है। सो अगर हम नॉर्थ के हिसाब से देखें तो चाइना है, ताइवान है, ताइवान भी इसका पार्ट है, जिसको ये रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही पार्ट माना जाता है। तो चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनॉय, मलेशिया एंड वियतनाम, ये कंट्रीज़, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये भी उसका पार्ट आता है। इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम जोग्राफी की, अगर यहाँ जोग्राफिकली अगर बात करें तो इट इज़ कनेक्टेड बाय दी ताइवान स्ट्रेट्स विद दी ईस्ट चाइना सी बाय दी लुजॉन स्ट्रेट। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसमें नहीं दिख रहा है, लुजॉन स्ट्रेट से कनेक्टेड आता है। लुजॉन स्ट्रेट इज मतलब फिलीपींस। तो अगर प्रॉपर बात करो इस जगह का, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है दैट इज द लुजॉन स्ट्रेट। इट कंटेन्स न्यूमरस शॉल, रीफ्स, अलॉट एंड आइलैंड्स। आइलैंड्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप दूसरे अगर कोई मैप में आप देखोगे आपको प्रॉपर आइलैंड्स दिखेगा, जो है पारासेल आइलैंड, दूसरा है हमारा ये स्कारबोरन शॉल, और तीसरा हमारा है दैट इज़ दिस पार्टली आइलैंड। ये कुछ आइलैंड्स है जो साउथ चाइना सी में ही आता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रैटेजिकली जो है हमारा इंडियन पैसिफिक सी, जो इंडियन पैसिफिक ओशन है इस तरफ, और इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, ये दोनों को कनेक्ट करता है बाय द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो हमारा जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जो कनेक्टिंग पार्ट है वो ये वाला पार्ट है थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। हमारे जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट हुआ था, 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिप जो है वो इसी जगह से पास आउट होता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ इसमें, साउथ चाइना सी इज टू बिलीव द ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व। क्यों चाइना इस साउथ चाइना सी के लिए हमेशा लड़ता है, वो इसके लिए लड़ता है क्योंकि साउथ चाइना सी की अगर मैं बात करूँ, सॉरी, इट कंटेन्स अ ह्यूज ऑयल, ठीक है, ऑयल है, मीथेन का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है साउथ चाइना सी में। सो एक गैस रिजर्व भी है जिसके वजह से साउथ चाइना सी पे वो अपना कंट्रोल बनाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन का, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1964। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ओके, अब हम थोड़ा साउथ चाइना सी के बारे में बात करते हैं। सो अंडर द कन्वेंशन ऑफ UNCLOS, ठीक है, अंडर दैट कन्वेंशन इन 1994 जो इस्टेब्लिश हुआ था, उस टाइम पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन, ठीक है। फिर 1997 में हमारा ये 9 डैश लाइंस बनाए गए थे रफली। ये जो इसका ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ 1118 माइल्स का ये प्रॉपर लाइंस मतलब इमेजिनरी लाइंस बनाए गए हैं। फिर 2002 में हमारा आसियान और चाइना ने एक ट्रीटी साइन किया, दैट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन दी साउथ चाइना सी, कि साउथ चाइना सी में कौन से पार्टीज पार्ट ले रहे हैं, कौन से कंट्रीज पार्ट ले रहे हैं। उसके बाद ये जो 9 डैश लाइंस हैं, या जो 9 डैश लाइंस जो साउथ चाइना सी में है, इट स्ट्रेचेस फॉर 100 ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम दी चाइनाज हाइना आइलैंड। यहाँ पे एक आइलैंड है जो दिख नहीं रहा है इसमें, दैट इज़ हैनान आइलैंड। हैनान आइलैंड से लेके हमारी पार्सले और स्पार्टली आइलैंड्स तक ये फैले हुई है। चाइना का जो क्लेम है वो ये बताता है कि उनके पास उनकी जो हिस्ट्री दैट इज़ 2000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू साउथ चाइना सी, ठीक है। अभी इश्यूज़ क्या क्या आए हैं साउथ चाइना सी को लेके, तो चाइना का जो क्लेम है इट इज़ वाई बिकॉज वहाँ पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है चाइना ने फॉर द मिलिट्री पर्पस, ठीक है।
उसके वहाँ से अगर वो लोग देखते हैं तो उनका ये बोलना है कि जो 9 डैश लाइन जो है, ये जो अगर आप जो ये बना रहे हो, ये प्रॉपर हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो हमने देखा था नॉटिकल माइल्स वाला, वो वायलेट करता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये एरिया जो है वो प्रॉपर हमारे अंदर आता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया हमारे अंदर आता है। जबकि जो हमारा UN कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी ट्रेड, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वो आपके अंदर नहीं आता है। सो ये कंटिन्यूसली बहुत टाइम से ये इशू चल रहा है। अभी भी इस पे डिसीजन देने के बाद भी चाइना हमेशा से बोलता है कि साउथ चाइना सी हमारा पार्ट है। सिमिलरली बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका भी ये बोलना है कि साउथ चाइना सी उनका पार्ट है। ऑब्वियसली यहाँ से उनके लिए भी 200 ऑफ नॉटिकल माइल्स उनके अंडर भी आएगा, तो सेम चाइना का क्या बोलना है कि ये पूरा पार्ट हमारा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो ये कुछ आर्टिकल्स थे आज की न्यूज़ में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे जानना फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द चैनल, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।